Hi everyone, welcome you all to my channel. This is Megha. Today in this chapter, Principles of Inheritance and Variation, we are going to study some important terms. As these terms are repeated again and again, and to understand this chapter in detail, we must know about it. Okay, so let's begin. So here is a first image in which you can see the chromosomes and DNA, isn't it? So let's take a human cell. So this is a human cell, and inside the cell there is a nucleus. Okay, and many cell organelles are there like mitochondria, Golgi bodies, ER, and so on. Right now we are talking about the nucleus. Inside the nucleus, chromosomes are present, and you all know that in humans, how many chromosomes are there? You know that there are 23 pairs of chromosomes. Okay, in a human cell there are 23 pairs of chromosomes, or we can say there are 46 chromosomes. Okay, now these chromosomes are made up of DNA. chromosomes क्या है? Nothing but they are made up of DNA. DNA से ही बने होते हैं chromosomes. ठीक है, आप जो DNA है उसकी फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. ओके, नाउ the segments of the DNA which codes for a protein that are called genes. ठीक है, जो कुछ सेगमेंट्स होते हैं डीएनए में जो कोड करते हैं प्रोटीन को, उसको बोलते हैं जीन्स. ओके, वेयर एज नॉन कोडिंग रीजन इज ऑल्सो देयर, दैट इज नॉट कोडिंग फॉर अ प्रोटीन. वी आर टॉकिंग अबाउट द कोडिंग पोर्शन ओनली. ओके, द कोडिंग पोर्शन which codes for some proteins, they are called genes. Okay, so genes are nothing but the segments of the DNA. Okay, is it clear? Now here we will see a karyotype. Have you heard about it? Karyotype is an image of an individual chromosome. So this is an image of a human chromosome. Okay, or we can say the collection of chromosomes are there. Now you can see the difference between A and B. Are you able to see any difference? So here one difference you can easily see is that in the figure B, the chromosomes are in cross shape. Why is it so? It is because these chromosomes are replicated ones. ये chromosomes replicate हो गए हैं. ठीक है, और ये जो है फिगर ए में ये chromosomes replicate नहीं हुए हैं. ठीक है, तो can you tell me now here in figure A how many chromosomes are there? Here total 46 chromosomes are there, but in B also there are 46 chromosomes only. Okay, chromosomes तो 46 ही हैं, but number of chromatids change हो जाते हैं. यहाँ पे chromatids कितने? 46 हैं, and in figure B the chromatids becomes 46 plus 46 how many? Becomes 92. The chromatids are 92 in figure B. This is the difference. Okay, are you getting my points? You know that at one chromosome there are 4 chromatids, 1, 2, 3 and 4. Okay, like this we will see that total 92 chromatids are there. Now the main purpose to show this image is to know about the homologous chromosomes. Homologous chromosomes क्या होते हैं? Homologous chromosomes are the pair of chromosomes that resemble each other. ठीक है, वो क्रोमोसोम जो एक जैसे लगते हैं, दे रिजेंबल ईच अदर एंड हैव नियरली द सेम डीएनए सीक्वेंस. ठीक है, अगर आप इसका डीएनए सीक्वेंस देखेंगे और इसका देखेंगे तो इट इज़ नियर बाई सिमिलर. ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, जैसे अब हम पढ़ेंगे जीन्स और एलील्स में तो थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, दैट वी विल सी. ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से क्रोमोसोम है? जो एक जैसे लगते हैं और उनका जो डीएनए सीक्वेंस है वो कुछ कुछ सिमिलर होता है. Or in homologous chromosome, one chromosome we get from mother and the other one we get from the father. Okay, same here also एक मम्मी से है एक पापा से है, like this, isn't it? That at number 1 chromosome how many genes are there? There are total 3958 genes. ठीक है, इतनी genes होती हैं number 1 chromosomes पे. Now here you can see the X and Y chromosomes are not homologous because X is quite longer whereas Y is shorter in length,
And at X chromosomes, around 1805 genes are present, whereas in Y chromosome, only 458 genes are there. So you can see the such variation is there in the number of genes. ठीक है, तो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं हैं. ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्लियर है. ओके, होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो हो गए जो एक से लगते हैं, देखने में उनकी हाइट वगैरह एक सी होती है, एंड दे हैव सम नियरली द सेम डीएनए सीक्वेंस. ऑलराइट, चलिए, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट फिगर वेयर वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन जीन एलील एज वेल एज व्हाट इज दिस लोकाई. पहले तो लोकाई जान लेते हैं. ठीक है, ये आपको पता है, ये क्रोमोसोम्स है. एक क्रोमोसोम जो है, ये वाला क्रोमोसोम, सपोज इट केम फ्रॉम पैटर्नल पेरेंट, एंड दिस इज द क्रोमोसोम विच केम फ्रॉम द मैटरनल पेरेंट. ठीक है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है. एक क्रोमोसोम पैटर्नल मीन्स फादर से आया है, या अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो मेल से आया है, या दूसरा वाला फीमेल से आया है. ठीक है, अब इस पर एक जीन है. अभी मैंने यहाँ पे एक ही जीन दिखाई हुई है आपको. अब ये जो जीन लोकेटेड है, कहाँ लोकेटेड है? एट दिस क्रोमोसोम. तो जो जहाँ भी ये लोकेटेड है, वो जो है वो जीन का क्या है? लोकस है. तो लोकस क्या हो गया? लोकेशन ऑफ जीन ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम. तो इस जीन की अगर हम बात करें तो दिस इज लोकेटेड ओवर हियर इन दिस होमोलोगस क्रोमोसोम. सो दिस इज द लोकस ऑफ दिस जीन. ठीक है, ये तो बहुत ईजी सी बात होगी ना. अब हम देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीन एंड एलील. अभी हम बात करते हैं, एक प्लांट लेते हैं, उसका कैरेक्टर ले लेते हैं हाइट. ठीक है, अब हाइट के लिए 3 तरह से जीन बन सकती हैं. ठीक है, या तो कैपिटल टी ये केस हो सकता है, और कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस केस इज कैन ऑल्सो बी देयर, और द थर्ड वन दैट इज स्मॉल टी. ठीक है, अगर हम हाइट लें प्लांट की, तो या तो प्लांट बहुत टॉल होता है या शॉर्ट होता है, ड्वार्फ होता है. ओके, शॉर्ट को ड्वार्फ बोलते हैं. ठीक है, तो ये 3 तरह की फॉर्म्स हो गई जीन्स की. अब ये जो फॉर्म्स हैं, दीज फॉर्म्स आर व्हाट वी कॉल एलील. एलील्स आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन्स. ठीक है, तो ये एलील होगी, एलील ऑफ ईच अदर, दे आर द एलील्स ऑफ ईच अदर. गेटिंग माई पॉइंट. अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लेटर्स टी कैपिटल में लिखा है, कुछ स्मॉल में लिखा है. तो कैपिटल लेटर इज डिनोटिंग द डोमिनेंट एलील, and the small one is denoting the recessive allele. ठीक है, जो कैपिटल लेटर है दैट इज डिनोटिंग द डोमिनेंट एलील, और स्मॉल लेटर इज यूज्ड टू डिनोट द रेसेसिव एलील. अब ये डोमिनेंट एलील और रेसेसिव एलील होते क्या हैं? डोमिनेंट एलील इज दैट एलील विच एक्सप्रेस इवन इन द प्रेजेंस ऑफ इट्स कॉन्ट्रास्टिंग एलील. ठीक है, डोमिनेंट एलील जो होगा वो अपने आप को 2 केस में शो करेगा. एक केस तो ये होगा, सपोज दिस केस इज दैट एंड दिस केस इज दैट. अब आप देख रहे हो यहाँ पे डोमिनेंट एलील है, एक भी डोमिनेंट एलील अगर है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, बिकॉज डोमिनेंट एलील इज हैविंग द ओवर पावर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो डोमिनेंट एलील विल एक्सप्रेस इवन इन द प्रेजेंस ऑफ इट्स कंट्रास्टिंग एलील. उसको फर्क नहीं पड़ रहा कि उसके आस पड़ोस में कौन सी एलील है. जैसे आपको देख रहे हैं यहाँ पे स्मॉल टी है, स्मॉल टी एलील है, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पे भी जो प्लांट होगा वो टॉल ही होगा, एंड इन दिस केस ऑल्सो द प्लांट इज टॉल. इन बोथ द केसेस द प्लांट विल रिमेन टॉल बिकॉज द डोमिनेंट एलील इज प्रेजेंट. बट इफ द केस इज लाइक दिस, ओके, रेसेसिव एलील वो एलील होती है जिसमें वी नीड 2 कॉपीज ऑफ द रेसेसिव एलील. ठीक है, अगर एक भी डोमिनेंट एलील आ जाएगी तो रेसेसिव एलील विल नॉट एक्सप्रेस. Recessive allele only express when there is a 2 copies of the recessive allele. ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल टी है, ये एलील अब अपने आप को शो करेगी. अब स्मॉल टी जब आ जाता है तो प्लांट होगा ड्वार्फ. ठीक है, क्योंकि वहाँ पर रेसेसिव एलील आ गई, तो प्लांट विल बी ड्वार्फ, वेयर एज इन दीज केसेस द प्लांट विल बी टॉल. ठीक है, क्लियर है? नाउ देयर इज अनदर टर्म दैट इज होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस. होमोलोगस तो हमने यूज़ किया था क्रोमोसोम्स के लिए. ठीक है, बट होमोजाइगस वी यूज़ फॉर जीन्स, एलील. ओके, होमोजाइगस एलील और हेटेरोजाइगस एलील. ठीक है, तो अगर ऐसा केस है कैपिटल टी स्मॉल टी, देन these both the alleles are similar. When both the alleles are similar, or we can say identical, then we call
होमोजाइगस एलील, ठीक है। वेयर एज both the alleles are unlike or not similar, but they are expressing the same trait, ठीक है। ये हाइट के लिए ही है दोनों एलील, बट ये सिमिलर नहीं है, तो इनको बोलेंगे हेटेरोजाइगस। दे आर कॉल्ड हेटेरोजाइगस एलील, ओके। होमोजाइगस कब बोलेंगे? जब दोनों एलील्स आइडेंटिकल हैं। इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि रेसेसिव है या डोमिनेंट है। अगर वो डोमिनेंट है, दोनों डोमिनेंट हैं, तो वी कॉल देम होमोजाइगस डोमिनेंट। अब दोनों रेसेसिव हैं, देन वी कॉल इट होमोजाइगस रेसेसिव, ठीक है। हेटेरोजाइगस में डोमिनेंट और रेसेसिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास दोनों तरह की जीन्स हैं, एलील्स हैं, ठीक है। होमोजाइग डोमिनेंट भी है और रेसेसिव भी है, तो नो नीड टू राइट डोमिनेंट और रेसेसिव। इज इट क्लियर? I hope it is clear. Now let's see the definition. Definition of a gene. A gene is a portion of DNA that determines a certain trait. ठीक है, DNA का पोर्शन होता है जीन, और it determines a certain trait or character. Whereas an allele is a specific form of a gene. क्या है एलील? जीन की एक स्पेसिफिक फॉर्म है। जैसे आपने देखा होगा ब्लड ग्रुप के जीन ABO, ठीक है, ABO ब्लड ग्रुप से आपने देखा होगा 6 डिफरेंट टाइप ऑफ एलील बन सकते हैं, right? 6 different type of alleles can be formed. So this is, you know, that the specific form of gene is allele. Functions. Genes are responsible for the expression of traits. ठीक है, जीन्स तो ट्रेट्स को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन एलील्स क्या करते हैं? वेरिएशंस लाते हैं। आपने देखा होगा किसी की आइज ब्लू होती हैं, किसी की ब्लैक होती हैं, किसी ब्राउन होती हैं। ये सब किसके ऊपर डिपेंड है? इट ऑल्स डिपेंड्स ऑन दी एलील्स, ओके। जीन्स डू नॉट अकर इन पेयर्स, वेयरएज एलील तो पेयर में ही काम करेंगे, ओके। एलील्स अकर इन पेयर्स। डोमिनेंट एंड रेसेसिव एलील already told you. Let's see the definition again. Dominant allele will express even in the presence of its contrasting allele. ठीक है, डोमिनेंट एलील को फर्क नहीं पड़ रहा कौन सी एलील उसके पास में है, उसके पास में कोई सी भी कंट्रास्टिंग एलील होगा, इट विल एक्सप्रेस, ओके। And recessive allele will express only if there is no dominant allele, okay. तो case will be small t, ठीक है, okay. Let's see the next one where we will learn about the monohybrid and dihybrid cross. So let's see what is monohybrid cross. In this cross there is a inheritance of a single character, ठीक है। तो जब मेंडल ने क्रॉस किया था in a breeding experiment in which he has considered a single character, that is the tallness of the plant, okay. एक ही कैरेक्टर को लेके उसने स्टडी करा, तो दैट इज व्हाट वी कॉल अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब एक, हाइब्रिड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 डिफरेंट वैराइटीज। बट इफ वी कंसिडर 2 डिफरेंट ट्रेट्स, देन वी कॉल इट एज अ डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे मेंडल ने जो क्रॉस किया है, यहाँ पे उसने येलो कलर के सीड्स लिए हैं और ग्रीन कलर के सीड्स लिए हैं, whereas शेप ली है राउंड शेप एंड रिंकल्ड शेप, ठीक है। हियर ही हैज़ कंसिडर्ड 2 ट्रेट्स एट द सेम टाइम। उसने स्टडी जब करी तो उसने 2 ट्रेट एक साथ स्टडी करी, तो दैट इज़ अ डाईहाइब्रिड क्रॉस, क्लियर। मोनोहाइब्रिड में एक ही ट्रेट की स्टडी की गई, डाईहाइब्रिड में 2 ट्रेट्स की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट इज द जीनोटाइप एंड द फिनोटाइप। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम? जीनोटाइप इज द सम टोटल ऑफ जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, ठीक है। जो जीन्स हमने इनहेरिट करी, दोनों पेरेंट्स से आएंगी ना जीन, मदर से भी फादर से भी, तो दैट इज द जीनोटाइप, सम टोटल ऑफ ऑल द जीन्स। वेयर द फिनोटाइप इज द एक्सप्रेस्ड और ऑब्जर्वेबल स्ट्रक्चर, जो हमें एक्सप्रेस हो रहा है और जो हमें दिख रहा है, जैसे हमारी आइज़ का कलर, दैट यू कैन सी, बट इसके पीछे जो जीन है वो हमें नहीं पता, ठीक है। तो जीन जो रिस्पॉन्सिबल है वो तो होगी जीनोटाइप, द आइज कलर दैट इज ब्लू इज द फिनोटाइप, or whatever the color, blue, brown, black, whatever the color is there, that is the phenotype. If we talk about the hairs, curly hairs, straight hairs, some are having, right, straight hairs, some have curly hairs. So the hairs which we can see is the phenotype, and the genes responsible for such character or such trait is the genotype. ठीक है जी। नेक्स्ट इज अबाउट द फीलियल प्रोजेनी एंड ऑफस्प्रिंग। ये तीनों वर्ड का मीनिंग एक ही है, जनरेशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द क्रॉसिंग ऑफ 2 पेरेंट्स।
जब दो पेरेंट्स का हम क्रॉस कराते हैं तो जनरेशन जो फॉर्म होती है दैट इज़ कॉल्ड द फिलियल जनरेशन। F1 जनरेशन, अगर आप बहुत वर्ड ये यूज़ होगा, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, ये सब क्या है, ये जो जनरेशन है जो क्रॉस की गई है पेरेंट्स से। पेरेंट्स का अगर हम क्रॉस कराएंगे तो जो जनरेशन पहली फॉर्म होगी उसे F1 बोलेंगे, फिर उसका F1 का सेल्फिंग कराएंगे तो नेक्स्ट जनरेशन जो होगी वो F2 बोलेंगे, ठीक है। क्रॉस का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ द मेल गैमीट एंड द फीमेल गैमीट, ठीक है, क्रॉसिंग। प्रोजेनी और ऑफ स्प्रिंग सिमिलर हैं, फिलियल, प्रोजेनी, ऑफ स्प्रिंग, दे बोथ आर द all three are the similar terms. Okay guys, hope this video is clear to you. Thanks for watching and please subscribe to my channel to watch my videos. Thank you.